हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y ਮਾਈਨਸ y1/m z ਮਾਈਨਸ z1/n। LMN ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹੋਗੇ ਦੈਨ ਓਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਓਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ -1 3 -2। ਦੇਅਰਫੋਰ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਆਹਾ। ਸੋ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ LMN ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਕਹਿ ਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਕਹਿ ਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਹਿ ਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ 1 ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ 1 is perpendicular to line 2 and 3। अब 2 and 3 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ L, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਦਾ L1 ਦੂਜੀ ਦਾ L2। ਤੋਂ ਆ ਲਓ ਇਹਦਾ L1 ਇਹਦਾ L2, ਇੱਕ ਅੱਗੇ M ਅੱਗੇ N, ठीक है, फिर -3L 2M 5N = 0। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ L×1 M×2 3×N L×-3 2×M। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ L + 2M + 3N = 0 -3L + 2M + 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ N। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2312 ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 2 ਅਤੇ 2, ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ 3 5, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ 1 -3, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ 2 -2, 10 -6, ਸੋ -9 -5 2 + 6, ठीक है जी। इस तरफ जाएगा तो सेम इस तरफ साइन चेंज करके 5 दूनी 10 5 दूनी 10 -6 फिर -9 -5, ठीक है जी। फिर ये तो बाद 2 ये बाद +6। सो ये वाली चीज़ होगी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो जो ये वाली चीज़ होगी तो L ਦੇ नीचे की आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 आ गया, M ਦੇ नीचे की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, -14, ਤੇ M ਦੇ नीचे की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਏ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ।
ठीक हो गया जी। सो ये आ गया तुहाडे कोल 2 -7 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ नहीं करना कि इत्थों चुक के रख दईए, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕਵਾਂਗੇ। सो L ਦੀ वैल्यू आ गई 2 ਲੈਮਡਾ, M ਦੀ वैल्यू -7 ਲੈਮਡਾ, N ਦੀ वैल्यू 4 ਲੈਮਡਾ। सो L ਦੀ वैल्यू 2 ਲੈਮਡਾ, M = -7 ਲੈਮਡਾ, N = 4 ਲੈਮਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ x + 1 ਓਵਰ L ਦੀ ਵੈल्यू 2 ਲੈਮਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y -3 ਆ ਰਹੀ ਜੀ, y -3 नीचे M ਨੂੰ -7 ਲੈਮਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z, ठीक है, +2 नीचे की ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੈਮਡਾ। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਕੱਟ ਦੋ। ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਲਓ। ठीक है, तो जोड़ा है इस क्वेश्चन पर आप फोकस देना, एक नालों ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लाँगे तुहाडे कोल इसकी। ठीक है, बट अगर मैं कहां कि एक या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता होंगे या ये वाला क्वेश्चन पेपर च आता होंगे। सो आप क्वेश्चन को समझिए, कहता फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द स्ट्रेट लाइन। तो जे आप देखिए आ स्ट्रेट लाइन थोड़ी मिरर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है जी, रफ डायग्राम है, इंक्लीनेशन आपको नहीं पता कितने है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 6 3 इन लाइन, आ लाइन है थोड़ी, तो ये जी लाइन है यदि इक्वेशन हुई x/1 y -1 z -2/3। सो इतने मैं एक चीज़ कहनी चाह रहा वहाँ पे इतने ना सब बुक्स च डिफरेंट मैथड ने तुहाडे कोल टीचर्स दे कराने दा तरीका, कुछ लोग प्रोजैक्शन ना करा लेंदे ने कुछ, पर जिद्दां मैं तुहानूं करा रहा तुसीं इन बिन इसे मैथड नाल स्टिक करना है क्योंकि जो सानू सिलेबस है वो सारा इसे मैथड च पूरा होना है। ठीक है, सो अगर आप देखिए तुहाडे कोल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये तो बाद की गल है। चलो फिलहाल पहला तो आप इमेज कटिए। देखो एक इमेज आ गया है ना, तो एक इत्थे होर चीज़ पुछी जा सकती है, उन्होंने दूजा पॉइंट कह देना मैं, इनू कहते फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीसरी जिहड़ी चीज़ है इनू कहते इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पहला मैं इमेज ते फोकस करदा वां, इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, इस पॉइंट दा इस लाइन ते इमेज आपां देखना हैगा। तो उस इमेज नूं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो अगर आप देखिए तुहाडे कोल, तो इमेज का मतलब होंदा जिन्नी दूरी ते आ पॉइंट है उन्नी दूरी ते आ है। इस चीज़ नूं असीं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने हैं। और इमेज निकालने लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर लभना बहुत ज़रूरी है। आ लाइन इस ते परपेंडिकुलर है, इस चीज़ की गारंटी है क्योंकि इमेज कढ़ने लिए हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना, साइन कन्वेंशन है ये। तो आपने करना की हैगा तुहाडे पास, देखो ये 100% श्योर है, 100% का चाहे तुसीं 200% कह लो, तो 100% श्योर है इसने आना ही आना है। अगर लंबा चल गया तो एक, अदरवाइज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन बुक चो करके देख लेना, बस तुहाडा मैथड पक्का हो गया, होर इहदे विच कुछ है नहीं गा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लो सब तो पहला एनी पॉइंट ऑन लाइन ले लो। एनी पॉइंट ऑन लाइन ले लो जी। अगर आप एनी पॉइंट ऑन लाइन की गल करिए तो एक्स की वैल्यू के आ गई, 2k + 1 हो गया। इसे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता,
ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ k ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2k+1 ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3k+2 ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ x y z ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ p ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ b, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ c, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ d। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਏ ਡੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏ ਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਏ ਪੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਪੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੇ पहला पॉइंट के -1 आ रहा, के आ रहा 1 के -2k+1 -6 3k+2 -3। सो अल्टीमेटली k -1 2k -5 3k -1। सो ये डायरेक्शन ऑफ ए पी हो गया। और तुसी कहने हो ए पी सी डी ते परपेंडिकुलर है, सी डी के डायरेक्शन रेशो पता है, हाँ जी पता है, देखो 1 2 3। अब तुहाडे कोल इत्थे तक मेरा ख्याल है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया। आ तुहानू क्वेश्चन च गिवन सी, लाइन तुहानू क्वेश्चन च गिवन सी, एनी पॉइंट ऑफ लाइन के पुट कर लिया, सो एक्स के आ गया, 2k+1 आ गया, 3k+2 आ गया, ठीक है जी। तो इनू असी पॉइंट पी कह लिया, ठीक है। डायरेक्शन नंबर ऑफ ए पी ले लिया अपने, k -1 2k -5 ਤੇ 3k -1, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। हाँ जी, उस तो बाद आप देखिए तुहाडे कोल बाई एज ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, किवें पता लग्या। आ देखो ना ए पी तुहानू पता जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल परपेंडिकुलर टू सी डी, अगर ए पी सी डी ते परपेंडिकुलर है देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज़ की प्रोडक्ट की होगी, देयरफॉर बाय डेफिनेशन की हुंदा है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा, 0 होगा। अब L1 कित्थों मिलना है, आहा, तो L2 इत्थों मिलना है, ये दूजा ये दूजा ये तीजा ये तीजा। सो इसका मतलब k -1 इंटू गुणा करूँगा इंटू 1, ठीक है जी। उस तो बाद अगले स्टेप 2k -5 यदि मल्टीप्लिकेशन होगी 2 ना, 3k -1 यदि मल्टीप्लिकेशन होगी 3, ठीक है जी। सो जो तुहाडे कोल आ वाली चीज़ लिखी आपां, सो k -1 तुहाडे कोल ते आ वाली चीज़ लिखी, उस तो बाद आ गया k -1 4k -10 9k -3 इज इक्वल टू 0। तो k -1 4k -10 ते 9k -3, ठीक है जी। सो 9 4 13 ते 14 14k इज -14 इज इक्वल टू 0। सो 14k इज इक्वल टू 14k की वैल्यू 1 आ गई। सो k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आने ना सानू कोई बेनीफिट होया, हाँ जी। देयरफॉर पॉइंट P इज़ वैसे P पॉइंट की सी k, एनी पॉइंट k+1 ते 3k+2। अब पॉइंट की बन गया k की जगह ते 1 3 और 5, पॉइंट पता लग गया। ये जो पॉइंट आया पॉइंट P जो आया आ वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट P का नाम फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सो जे क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर आवे तो तुसी आराम नाल कर देना, इस पॉइंट नूं आपां कहने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो मेन चीज़ की हैगी है तुहाडे कोल बहुत वारी पेपर विच अप टू दिस पूछा गया है, मैं सारा इक्को च लै लिया ना भाई, जिहड़ा भी क्वेश्चन आ जाए तो इक्को थां ते प्रिपेयर करा दा, मतलब अप टू दिस पेपर दे विच तुहाडे कोल पूछा गया और अक्सर आंदा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह आएगा तो तुसी इस तरह हैंडल कर लेना है जी। तुहाडे कोल हजे सवाल नहीं मुक्या है, सवाल अगे जाएगा तुहाडे कोल, तो अगे जाएगा तो फिर आप किस तरह करांगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लईए अगे हुण अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो तुसी पहली इक्वेशन देखो, मैं तुहानूं आ बना के दित्ती सी, मैं दोबारा बना देना। आ थोड़ा प्लेन सीगा, प्लेन मिरर, आ थोड़ी लाइन परपेंडिकुलर सीगी, आ थोड़ा 1 6 ते 3 सीगा, आ थोड़ा फुट सीगा, आ थोड़ा इमेज सीगा अल्फा बीटा गामा, आ थोड़ी सी सी, आ थोड़ी डी सी, आ थोड़ा पी सी। सो बार बार पेज चकना पैंदा जी। इत्थे थोड़ा ए सीगा, आ फुट ऑफ परपेंडिकुलर असीं लभ चुके हैं, तो जो लभ्या है वो आया 1 3 5, ठीक है। ए डैश कह लो इमेज नूं, जिहड़ा पॉइंट लिखी दा उहदा डैश लै लीदा। सो ए डैश इज़ इमेज ऑफ ए, देयरफॉर एदी ते एदी दूरी बराबर होंदी है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्यों होगा 1 प्लस अल्फा बटा 2 बराबर है 1, ठीक है। बीटा प्लस 6 बटा 2 बराबर है 1 प्लस अल्फा बटे 2 बराबर है 1, बीटा प्लस 6 बटा 2 बराबर है 3, गामा प्लस 3 बटा 2 बराबर है। मिड पॉइंट पहला प्लस पहला बटा 2 इज इक्वल टू आ पॉइंट, दूजा प्लस दूजा बटा 2 इज इक्वल टू आ पॉइंट, तीजा प्लस तीजा बटा 2 इज इक्वल टू आ पॉइंट। सो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 3, ठीक है जी। सो 1 0 3 इनू असी फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी इमेज ऑफ गिवन पॉइंट। सो इमेज ऑफ गिवन पॉइंट भी अपना लभ गया जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगर आप देखिए तुहाडे कोल भी जे इमेज भी लभ गया तुहाडे कोल, तो हुण आपां ने की कड्ढना हैगा तुहाडे कोल, आ देखो तुसीं कहता मैं पूरी नहीं की स्टेटमेंट, ये भी आप लिख ली है जी माड़ी जी तुहाडे कोल कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड इट्स इमेज, गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। हुण इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स एंड इट्स इमेज, ठीक है। हुण आपां इत्थे देखिए आ वाला इमेज है, इमेज लभ लिया मैं, कोई आया 1 0 ते 3 है ना, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण 1 0 3 तो आ चुका है। हुण तुसीं की करना है, हुण इक्वेशन ऑफ ए डैश कड्ढनी है, इक्वेशन ऑफ ए डैश, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए डैश कड्ढन का तरीका की होएगा, उरे लिख देना इक्वेशन ऑफ ए डैश। देखो 2 पॉइंट पता हो फिर तो सानू मौज है, किस चो पास कर दी, इस चो y -6 z -3। हुण इत्थे सवाल कोई बच्चा कहता मैं सर इस तो पास कर सकदा, बिल्कुल कर सकदा जी तुसीं। मैं इनू x1 y1 z1 लिया, तुसीं इनू x1 y1 z1 लैके कर सकते हो। हुण नीचे की हुंदा डायरैक्शन रेशो, वो की हुंदा डिफरेंस, डिफरेंस की x2 - x1 1 - 1 0, ठीक है जी। x2 - x1 है तो पास तो 1 - 1 0, फिर x2 0 0 -6, सो इत्थे -6 आ जाएगा, फिर इत्थे 3 3 - 3, सो ये भी 0 आ जाएगा। सो एक मिनट रुको जी, इत्थे 5 सी मेरे ख्याल इमेज विच, आपां जदों दा फुट कड्ढिया सीगा, एक मिनट मैं पिछले पेज देखना जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अपना इमेज जिहड़ा आया सी ना, 2 आया सीगा तुहाडे कोल। एक मिनट दोबारा आप स्टार्टिंग तो देख लीए जी, जदों फुट कड्ढिया सीगा, क्योंकि इहदा आंसर डिफरेंट आ रहा बुक नालों, आप 1 मिनट मिला लीए। तो जदों असीं फुट दे पॉइंट कड्ढे सीगे वो आए सीगे तुहाडे कोल आ वाले 1 3 5, और इत्थे तक सवाल ठीक सीगा क्योंकि आंसर मेरा टैली करदा सीगा। फुट तो बाद तुसीं उरे जदों फुट लिखिया तो तुसीं 1 3 5 लिखिया, ठीक है। पॉइंट जिहड़ा सी 1 6 3 सीगा, सो पहला प्लस इहदे बटे 2 इज इक्वल टू 1, उहदे इत्थे 5 सीगा, तां ही क्या ना फिर फर्क पै गया। 5 दूनी 10 चो 3 घटाए 7, सो 1 0 7 तुहाडा इमेज सीगा, तां ही आंसर गलत आ रहा सी।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 0 7 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। y -6 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ, 2 3 6 z -3/2। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਇਮੇਜ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਮੇਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ AP। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ AP ਨਿਕਾਲ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।